یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ چھوڑے مجھے، چھوڑے میرے بلاؤز کو۔ نین تارا اس کا ہاتھ پیچھے کرنے لگی، ورنہ وہ جنونی انسان تو اس کا بلاؤز ہی پھاڑ دیتا۔ چلو اٹھو اور ابھی میرے بیٹے کو فیڈ کرواؤ، میں کچھ نہیں جانتا۔ ارباز جعفر نے لہو رنگ آنکھوں سے نین تارا کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی، اسے ارباز سے پہلے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ کہنے لگا، چلو جلدی کرو، میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا کر گزرے گا۔ نین تارا کہنے لگی، میرا بازو چھوڑو ارباز، دماغ ٹھیک ہے؟ میں کیسے اس کو فیڈ کروا سکتی ہوں؟ میں کنواری فیضان کو فیڈ نہیں کروا سکتی۔ ارباز کہنے لگا، ایسے کیسے نہیں کروا سکتی؟ جب اپنی بہن کی جگہ لے سکتی ہو، یہاں اپنی بہن کی طرح سہاگ رات کی سیج سجا سکتی ہو، تو میرے بچے کو بھی ماں بن کر فیڈ کروا سکتی ہو۔ جلدی کرو، کھولو اپنے بلاؤز کے بٹن، میں فیضان کو لے کر آ رہا ہوں، اسے میرے سامنے تم فیڈ کرواؤ گی اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ اپنی بھوک نہیں مٹاتا۔ یہ سن کر نین تارا کی جان نکلی تھی۔ ایک تو وہ اس سے شادی کے لیے رضامند نہیں تھی، لیکن اپنے بھانجے کی خاطر اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی تو اس کے آنسو تک خشک نہیں ہوئے تھے، اور ارباز کی باتیں نین تارا کے ہوش اڑا کر رکھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ارباز سے کیسے بات کرے۔ وہ تو اب اس رشتے کو ہی ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی، قبول نہیں کر پا رہی تھی جو اچانک اس پر تھوپ دیا گیا تھا۔ اور اس پر ارباز کی باتیں، وہ باہر جا چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں فیضان کو لے کر آیا، جسے نین تارا نے ابھی فیڈر پلا کر سلایا تھا۔ وہ فیضان کے کمرے میں ہی لیٹ گئی تھی، سوچ رہی تھی کہ کپڑے تبدیل کر کے اس کے ساتھ ہی سو جائے، کیونکہ شادی تو اس نے اپنے بھانجے کو سنبھالنے کے لیے کی تھی، ارباز کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے نہیں۔ مگر اس افتاد کی کہاں خبر تھی کہ جیسے ہی اسے سلا کر آئے گی، ایک بار پھر وہ جاگ کر رونا شروع ہو جائے گا۔ اسے شروع ہی سے ارباز سے ڈر لگتا تھا، تب سے جب وہ اس کی بڑی بہن روبینہ کا شوہر تھا۔ وہ شروع ہی سے غصے کا بہت تیز تھا، اسی لیے نین تارا تو اس سے بات کرتے ہوئے بھی گھبراتی تھی، اور اب ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن میں پھنس چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ارباز فیضان کو کمرے میں لے کر آیا تو وہ بلک بلک کر رو رہا تھا، اور لا کر اس نے نین تارا کی گود میں اسے بٹھا دیا۔ کہنے لگا، کھولو اپنے بٹن، میرے سامنے تم میرے بچے کو فیڈ کرواؤ گی۔ تم نے کیسے اسے بھوکا سلا دیا؟ نین تارا کا رنگ اڑ کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، تم اتارو گی اب یا میں اتاروں؟ یہ کہہ کر اس نے اس کے عروسی لباس سی چولی کے آگے بند ہوئے بٹن کو کھولنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شرم ہے یا نہیں آپ میں؟ کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ آپ مجھے چھونا بند کریں۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے وہ ارباز کو خود سے دور رکھے۔ چولی کے سامنے کے بٹن کھل چکے تھے، اس کی رانائیاں اندر سے چھلکنے لگی تھی۔ نین تارا نے فیضان کو بیڈ پر لٹا دیا، وہ رونے لگا۔ وہ اپنا آپ ارباز سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہاری ہمت اتنی کہ تم نے میرے بچے کو بیڈ پر لٹا دیا، اسے رلا رہی ہو؟ تب تک وہ اس کے بلاؤز کے سارے بٹن کھول چکا تھا۔ نین تارا نے بمشکل سے اپنا آپ چھڑوا کے اسے پیچھے دھکا دیا۔ اس کی گوری رنگت اور اس کی رانائیاں دیکھ کر ارباز تو کچھ دیر ششدر سا رہ گیا، لیکن تب تک نین تارا کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ ارباز نے جب اسے کمرے سے بھاگتے دیکھا تو اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن وہ دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ بری طرح سے رو رہی تھی، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارباز کے ناخنوں سے اس کے سینے پر خروشیں پڑ چکی تھیں، وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ جب بری طرح سے دروازہ دھڑ دھڑایا گیا، دروازہ کھولو نین تارا، دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا، میرا بچہ رو رہا ہے۔ جس طرح سے شیر کی طرح وہ دھاڑا تھا، نین تارا کی تو جان نکل گئی تھی۔ وہ دروازے کے پیچھے بنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ کر رونے لگی۔ جانتی تھی کہ ارباز اس کا کیا حال کرے گا۔ ابھی وہ رو رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا۔ اس نے لاک ٹھیک سے تو لگایا تھا، مگر شاید مکمل لاک کرنا بھول چکی تھی۔ اس باڈی بلڈر کے سامنے یہ دروازہ کیا ہی اہمیت رکھتا تھا۔ ارباز بڑے غصے سے اندر داخل ہوا۔ نین تارا اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپانے لگی۔ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہو تم شاید میرے غصے سے واقف نہیں ہو، میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔
नैन तारा डर कर कहने लगी, मम मुझे शर्म आती है। अरबाज कहने लगा, आज मैं तुम्हारी सारी शर्म उतार कर रख दूंगा। वो उसे बाजू से पकड़कर दोबारा अपने कमरे में लेकर आया और बेड पर पटका था। फैजान उसकी गोद में लिटाकर कहने लगा, फीट करवाओ इसे। जब फिर नैन तारा टस से मस ना हुई तो उसने दोनों हाथों से उसके हाथों को ऊपर की जानिब पिन अप किया और खुद फैजान को नैन की धड़कनों के करीब करके उसे। नैन तारा की बहन रुबीना की शादी अरबाज से हुई थी और ये शादी अरबाज की पसंद की थी। उसने रुबीना को किसी शादी के फंक्शन में देखा था और उसे देखकर ही उसका दीवाना हो गया था, लेकिन उसकी मोहब्बत में जुनून का अंसर बहुत ज्यादा था। अव्वल तो वो रुबीना को मायके आने ही नहीं देता था। कभी वो मायके आ भी जाती तो रात को उसे लेने आ जाता, कहता कि रात तुम्हारे बगैर नहीं कटती। नैन तारा मुंह बसोड़ कर कहने लगी, अच्छा ऐसा भी क्या करते हैं आप दोनों रात को जो आपके बगैर उनकी रात नहीं कटती। मासूम शरारत से वो ऐसी बातें बोल जाया करती थी। जब रुबीना मुस्कुराकर उसके सर पर प्यार से चपत मार कर कहने लगी कि छोटी हो और छोटी रहो, चंद सालों बाद जब तुम्हारी शादी हो गई ना, फिर देखना तुम्हारा शौहर भी तुम्हें मायके में कदम रखने नहीं देगा। ये शौहर लोग होते ही ऐसे हैं, नई नई शादी हो जाए तो बीवी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं और धीरे धीरे जब वक्त गुजरता जाए तो वही उन्हें फजूल सामान लगने लगती है। रुबीना वाक़यात और हालात आसपास देखकर एक गहरी सांस खारिज कर चुकी थी कि कहीं एक रोज़ जिस कदर मोहब्बत उससे अरबाज करता है, एक रोज़ वो बदल ही न जाए। मगर फ़ौरन से वो अपनी बहन की बाहों में बाहें डालकर कहने लगी, अरे अरे, जिस कदर प्यार आपका शौहर आपसे करता है ना, मैं तो कहती हूँ कि 7 जन्मों तक वो सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करेंगे। भला आप जैसी प्यारी सी वाइफ के अलावा उनके वहमो गुमान में कोई और भी आ सकती है क्या? आपको वो नज़रअंदाज करने का तो सोच भी नहीं सकते। वो अपनी बहन के गाल पर हाथ फेर कर उससे बोली थी जब उसकी नज़र बेसाख्ता गर्दन पर गई जहाँ पर लव बाइट का निशान अभी भी मौजूद था। अगले पल कहने लगी, हो देखे, भले मैं छोटी हूँ लेकिन ये जिस तरह के निशान आपकी गर्दन पर पड़े हुए हैं ना, देखकर यही लगता है कि ये खड़ूस हर वक्त गुस्से में रहने वाले हमारे अरबाज भाई हैं, बहुत रोमांटिक। ये कहकर वो भागी थी और रुबीना तो बस शर्म के मारे अपनी गर्दन छुपाती रह गई। जब भी नैन तारा रुबीना को देखती तो यही शिकवा करती कि अपने मायके रहने नहीं आती। मैं क्या करूं, अरबाज गुस्से के बहुत तेज हैं, कहते हैं मुझे तुम्हारे मायके में रहना पसंद नहीं। शादी के बाद तो बस शौहर की मर्जी चलती है, लड़की की अपनी मर्जी थोड़ी चलती है। वो नैन तारा को बहुत प्यार से समझा रही थी। रुबीना और नैन तारा बस 2 ही बहनें थी। नैन तारा 6-7 साल छोटी थी। एक बार जिद करने लगी कि आप रात को यहीं रुक जाएं, मैं अरबाज भाई से बात कर लेती हूँ। रुबीना कहने लगी, तुम्हें पता है ना वो गुस्से का कितना तेज है। जब उन्होंने यहाँ आना होता है तो मेरे तो हाथ पांव फूल जाते हैं कि कहीं उनके खाने में या खिदमत में कोई कमी ना हो जाए। तुम जानती हो ना मैं अम्मी के साथ मिलकर कितनी चीज़ें तैयार करती हूँ कि ये ना हो कि तुम उनसे बात करो और उन्हें गुस्सा आ जाए। उनका गुस्सा तो बस नाक पर होता है। बहरहाल नैन तारा का दिल बुझ कर रह गया था। अपनी बहन के साथ वो बहुत अटैच थी, लेकिन शादी के बाद तो जैसे उसकी बहन उसको मैसर ही नहीं आती थी। महीने के बाद आती थी और बस पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता था। बातों में तो पता ही नहीं चलता था। रात को उसका बहनोई आकर उसकी बहन को ले जाता। एक बार रुबीना का फ़ोन आया और उसने अपनी वालदा खालदा बेगम को ये खुशखबरी सुनाई कि वो उम्मीद से है। ये सुनकर खालदा बेगम बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, अम्मी यूँ तो घर में हर काम के लिए मुलाजमा है, लेकिन रात रुकने के लिए भी तो कोई तैयार नहीं हो रही। आप नैन तारा से कहें कि अब तो वैसे भी उसके कॉलेज की छुट्टियां हैं, कुछ दिन मेरे पास आकर रह ले। नैन तारा अपनी बहन के घर रहने चली गई। एक बार उसकी अलमारी सेट कर रही थी तो उसके कपड़े देखकर कहने लगी, आप ही आपकी बरी के जोड़े तो बहुत अच्छे हैं। रुबीना कहने लगी, हाँ अगर तुम्हें पसंद है तो पहन लो। कहने लगी, सच्ची मैं पहन लूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? कहने लगी, नहीं, मुझे भला क्यों एतराज़ होगा। नैन तारा ने अपनी बहन रुबीना का एक बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई वाला जोड़ा पहन लिया। रुबीना कहने लगी, नैन तारा तुम्हारे भाई आने वाले हैं, ऐसा करो ताज़ी रोटी बना दो, वो गरम गरम रोटी ही पसंद करते हैं। मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बताकर मेरी जान अजाब में डाल दी, वरना ये छोटे मोटे काम मैं खुद कर लेती थी। नैन तारा कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। वो रोटी बना रही थी और अरबाज खुद ही दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने किचन था। नैन तारा की उसकी जानिब पेट थी, कपड़े उसने रुबीना के पहन रखे थे, इसीलिए वो धीरे धीरे चलता हुआ अरबाज किचन में आ गया और पीछे से ही नैन तारा को अपने हिसार में लेकर उसकी गर्दन पर हल्का सा दांत काटा। नैन तारा की तो जैसे जान निकली। कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? नैन तारा की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह से पीछे हटा था। जब नैन तारा ने पलट कर देखा वो तो अपनी जगह शर्मिंदा होकर रह गया। कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने रुबीना के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उसे बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी के कपड़े पहने तो देखना क्या करता हूँ तुम्हारा हाल, बदतमीज लड़की। नैन तारा बुरी तरह से डर गई थी। इसके बाद से तो नैन तारा को अरबाज से बहुत डर लगता था। वो जल्दी वापस अपने घर चली गई और जब भी अरबाज आता तो डर कर अपने कमरे में बंद हो जाती थी। उसने रुबीना से भी कभी कुछ नहीं कहा, न कुछ बताया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रुबीना की जब डिलीवरी हुई तो सी सेक्शन से हुई और ऑपरेशन के दौरान लेडी डॉक्टर ने केमिकल से भरी हुई रुई अनजाने में उसके पेट पर ही रखी रहने दी और उसके स्टिचेस लगा दिए। जब रुबीना ने बेटे को जन्म दिया 2 दिन बाद घर गई तो उसको हल्का हल्का अपने स्टिचेस में दर्द महसूस होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो दर्द बढ़ने लगा।
کبھی کبھی اتنی شدت اختیار کر جاتا کہ وہ تڑپنے لگتی۔ ارباز اسے فوراً سے ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن وہ لیڈی ڈاکٹر جیسے ہی اس کا الٹرا ساؤنڈ کر چکی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن وہ یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ غلطی اس کی ہے، اسی لیے اسے معمولی سا پین کلر دے کر واپس گھر بھیج دیتی تھی۔ 1.5 مہینے بعد اس کا انفیکشن اس قدر بڑھ گیا کہ درد کے مارے جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ ارباز کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا جب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ کی بیوی مر چکی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ اس کو صرف درد تھا، کئی بار لیڈی ڈاکٹر نے اسے پین کلر لگایا تھا، وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا ان کے اندر آپریشن کے ہی دوران ڈاکٹر کی ہی نااہلی سے کچھ رہ گیا تھا اور اسی وجہ سے ان کا انفیکشن بڑھ گیا۔ اگر آپ وقت پر کسی اور اچھی ڈاکٹر کو دکھاتے تو آپ کو سچ بتا دیتی تو شاید آپ کی بیوی بچ جاتی۔ یہ سن کر ارباز نے اس لیڈی ڈاکٹر کو بہت باتیں سنائی تھی، بہت برا بھلا کہا تھا، شور مچایا تھا، لیکن اس سب کا فائدہ اسے کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ روبینہ تو مر چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، کسی چھوٹے بچے کی طرح سے رو رہا تھا۔ اس کا بیٹا نانی کی گود میں رو رہا تھا۔ کبھی خالدہ بیگم اسے بہلانے کی کوشش کرتی تو کبھی نین تارا چھوٹے سے فیضان کو گود میں لے کر چپ کروانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ خود بھی اتنی بڑی نہیں تھی، بس 11ویں جماعت میں تھی، لیکن فیضان تو منہ میں زبان نہیں ڈال رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ چند دن تو ارباز کو بھی کوئی ہوش نہیں رہی، وہ بھی اپنے گھر نہیں گیا تھا، کہتا تھا گھر جاتا ہوں تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ویسے بھی اس کے والدین حیات نہیں تھے، پہلے چچا کے ساتھ رہتا تھا، شادی ہوئی تو اپنا الگ گھر لے لیا، لیکن اب تنہا گھر میں رہتے ہوئے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ کبھی لگتا تھا کہ روبینہ کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ روبینہ کہتے ہوئے کمروں کے دروازے کھول کر دیکھنے لگتا تھا۔ جب وہ ارباز کو کہیں بھی نظر نہیں آتی تو رونے لگتا تھا۔ بہرحال 1 مہینہ گزر گیا تھا، وہ اپنی فیکٹری جانے لگا، روزانہ خالدہ بیگم کے گھر آتا، تھوڑی دیر فیضان سے پیار کرتا اور چلا جاتا۔ فیضان اب نین تارا کا کچھ عادی ہونے لگا تھا، حالانکہ وہ زیادہ نہیں سنبھالتی تھی، بہت جلدی تنگ آ جاتی تھی، اسے اپنی والدہ کے حوالے کر دیتی تھی، کہتی تھی یہ بہت تنگ کرتا ہے اماں، رات کو یہ سوتا نہیں ہے، مجھے اس لیے لے کر اسے ٹہلنا پڑتا ہے، اور صبح میں نے کالج بھی جانا ہوتا ہے۔ زیادہ تر اسے خالدہ بیگم ہی سنبھالتی تھی، لیکن وہ بھی بوڑھی تھی، اسی لیے بہت جلدی تھک جاتی تھی۔ ایک بار انہوں نے ارباز سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، وہ فیضان کو گود میں بٹھائے پیار کر رہا تھا۔ جب خالدہ بیگم نے کہا کہ بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، نین تارا کالج میں پڑھتی ہے، فیضان کو سنبھالنا ہم دونوں کے بس کی بات نہیں، تمہیں چاہیے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ خالدہ بیگم نے نظریں چراتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ کہیں داماد کو بری نہ لگ جائے، کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز اور موڈی تھا۔ کہنے لگا تو آپ کو میرا بچہ بوجھ لگنے لگا ہے، ٹھیک ہے میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگی میرا یہ مقصد نہیں تھا، میری اپنی سگی بیٹی کا بچہ ہے، میں نانی ہوں اس کی۔ وہ کہنے لگا اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ جتاتی نہیں۔ کہنے لگی بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے اب بچہ سنبھالا نہیں جاتا، مجھے بھی تو بیٹی کا اتنا بڑا صدمہ ملا ہے، مجھے تو لگتا ہے جیسے میں بھی مر جاؤں گی۔ بس میری کوشش ہے کہ جلد از جلد نین تارا کی شادی کر دوں، وہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میں بھی سکون سے مر سکوں، میرا تو گھر ہی ویران ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے آنسو صاف کیے تھے۔ ارباز کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا کہ انہیں اپنی بیٹی کی پرواہ تھی، اس کے بیٹے کی نہیں۔ کبھی اس کی گود میں لیٹے ہوئے فیضان نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ بچوں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، چپ کیسے کروایا جاتا ہے، ارباز کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر چپ کروانے لگا۔ ارے بچے چپ ہو جا۔ ایک دم سے اس کا چہرہ زاد ہونے لگا تھا، جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ آنٹی پلیز دیکھیں نا یہ کیوں رو رہا ہے، اسے کیا ہو گیا؟ وہ روبینہ بھی ایسے روئی تھی جب وہ مرنے والی تھی، وہ بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی، دیکھیں کہیں یہ بھی تو، اس سے بھی تو کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک دم سے ہذیانی ہو کر وہ سب کچھ بولے جا رہا تھا اور خالدہ بیگم تو ہڑبڑا سی گئی۔ تبھی کمرے سے نین تارا نکل کر آئی تھی، کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہیں ارباز بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اسے صرف بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ میرے بھانجے کو کچھ ہو۔ اسے سینے سے لگا کر ٹہلنے لگی، وہ فوراً سے چپ ہو چکا تھا۔ خالدہ بیگم کہنے لگی یہ ڈبے کا دودھ پیتا ہے نا، اسی لیے جب بعض دفعہ ہضم کرنے میں مشکل ہو تو اس کے پیٹ میں تھوڑا سا درد اٹھتا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نین تارا کو اپنے بچے کے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ سوچنے لگا۔ آپ کو نین تارا کی شادی کی فکر ہے اور مجھے اپنے بیٹے کی، ایسا کریں نین تارا کی شادی مجھ سے کر دیں، آپ کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور میرے بیٹے کو ماں بھی مل جائے گی، ویسے بھی وہ اچھا خاصا کماتا تھا، اچھا گھر تھا۔ خالدہ بیگم سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں چند دنوں میں بتاتی ہوں۔ لیکن جب نین تارا سے بات کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا کہ وہ ارباز سے شادی نہیں کرے گی۔ خالدہ بیگم کہنے لگی کیا ہو گیا ہے تمہیں، اچھا خاصا کماتا ہے، پھر تمہارے بھانجے پہ کوئی سوتیلی ماں آئے گی تو پتہ نہیں کیا سلوک کرے گی، تم ہوگی تو ظاہر ہے تم اسے پیار سے پالو گی۔ وہ کہنے لگی امی مجھے شادی نہیں کرنی، میں بھی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتی، مجھے ابھی پڑھنا ہے اور یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں اسے نہیں سنبھال سکتی۔ نین تارا کا مزاج اور تھا، ظاہری سی بات ہے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئی تھی اور ہونے والے شوہر کو لے کر اس نے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ارباز تو کہیں سے بھی اس کا آئیڈیل نہیں تھا، اسے تو ارباز جیسے لوگ ہی بالکل پسند نہیں تھے۔ بھلا وہ پہلے سے شادی شدہ شخص سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ بھلے ہی وہ اس کی بہن کا شوہر تھا، مگر تھا تو شادی شدہ۔ خالدہ بیگم کی ان دنوں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے بیٹی کو مجبور کرنے لگی، کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پیچھے سے تمہارا کیا ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ اپنے جیتے جی تمہاری شادی کہیں کر جاؤں۔ لیکن نین تارا نہیں مان رہی تھی،
कुछ दिनों बाद ही खालदा बेगम के सीने में दर्द हुआ। नैन तारा के तो हाथ पांव फूल गए। एक फैजान उसे परेशान करता था, दूसरा अपनी माँ की हालत देखकर वो घबरा गई। उसने रात के 3 बजे अरबाज को फ़ोन किया कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप आ जाएं। वो भी जल्दी से गाड़ी ड्राइव करते हुए आया था। खालदा बेगम को अस्पताल लेकर गया। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर कहते ना तो इनका ऑपरेशन हो सकता है और ना ही इनके बचने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए खालदा बेगम के मजबूर करने पर नैन तारा ने अरबाज से निकाह कर लिया, लेकिन वो अपने घर पर ही थी। 2 दिन के बाद खालदा बेगम का भी इंतकाल हो गया। वो तो दोहरे सदमे से गुजर रही थी, रो रही थी। लेकिन जैसे ही खालदा बेगम की तदफीन हुई तो अरबाज उसे कहने लगा, तुम मेरे घर चलो। वो अरबाज के घर पहुंची थी। उसे लगा था अरबाज उसका एहसास करेगा, लेकिन अरबाज उसे कहने लगा, कमरे में एक उरूसी लिबास पड़ा है, तुम्हारी बहन का, उसे पहनकर तैयार हो जा। ये सुनकर तो नैन तारा को हैरत हुई थी। उसकी माँ को मरे हुए बस 2 दिन ही तो हुए थे, बहन को मरे हुए 1 महीना गुजरा था, और अरबाज उसे कह रहा था कि वो दुल्हन बनकर तैयार हो जाए। कहने लगी, अरबाज भाई आप ये क्या कह रहे हैं? तो दांत कचकचाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तुम्हारी तो पहले ही मुझ पर नीयत खराब थी। कभी रुबीना के कपड़े पहनती थी, तुम्हें शौक था ना रुबीना की जगह पर आने का, उसके कपड़े पहनने का, उसकी उतरन पहनने का, तो आज अपना ये शौक पूरा करो। जाओ जाकर उसका रूसी लिबास पहनकर तैयार हो जाओ। वो बेहद गुस्से में था। लग रहा था कि अगर वो तैयार नहीं होगी तो न जाने क्या कर बैठेगा। नैन तारा बुरी तरह से डर गई थी। जल्दी से कमरे में चली गई और उरूसी लिबास भी पहन लिया। तैयार क्या होना था, बस हल्का फुल्का मेकअप किया, वो भी रोते हुए। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि वो बहुत बड़ी तो नहीं थी, ना ही इतनी समझदार थी। दुल्हन बनकर बैठी, लेकिन फैजान के रोने की आवाज़ आने लगी तो जल्दी से कमरे से बाहर निकली। देखा तो उसे कहीं भी अरबाज नजर नहीं आया। वो जल्दी से किचन में गई, उसका फीडर तैयार किया और फैजान के कमरे में आ गई। इसे फीडर पिलाकर वहीं उसके बराबर में लेट गई। जब रात के किसी पहर अरबाज ने उसे बाजू से पकड़कर बुरी तरह से झिंझोड़ा था और फिर उसे अपने कमरे में ले गया। कहने लगा, बताओ मुझे, कहीं तुमने तो मेरी बीवी को नहीं मारा? मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, तुम्हें शायद हमारी मोहब्बत से जलन थी। मैंने सुना था तुम्हें अपनी बहन से बातें करते हुए, तुम कह रही थी आप ही दुआ करें मेरा शौहर भी अरबाज जैसा हो। बताओ, तुम मुझे देखकर आहें भरती थी। नैन तारा ने तो यूं ही ये बात रुबीना से एक बार कह दी थी, क्योंकि वो देखती थी कि अरबाज उसका बहुत ख्याल रखता था, तो उसने भी कह दिया कि आप ही दुआ करें कि मेरा शौहर भी अरबाज भाई जैसा हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि अरबाज ही उसका शौहर बन जाएगा और उस पर शक भी करेगा। फिर कहने लगा, मेरी बीवी बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? मेरी बीवी बनने के साथ साथ तुम मेरे बेटे की माँ भी बनोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रुबीना बनी थी। तुम उसे अपनी फीड करवाओगी और मेरे सामने करवाओगी। ये सुनकर तो नैन तारा का दिमाग घूम कर रह गया था। कहने लगी, मैं कंवारी, मैं कैसे फैजान को फीड करवा सकती? आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज़ मुझसे इस किस्म की बातें ना करें, मुझे बुरी लगती हैं। वो कहने लगा, क्यों नहीं करूं? जब तुम अपनी बहन की जगह पर बैठ सकती हो, उसके कपड़े पहनकर दुल्हन बन सकती हो, तो मेरे बच्चे की माँ भी बन सकती हो। मेरा बच्चा भूखा नहीं रहेगा, वो तुमसे अपनी भूख मिटाएगा, वो भी अपनी भूख मिटाएगा और मैं भी। वो उसके बटन खोलने लगा, लेकिन तभी नैन तारा अपना आप छुड़वा कर भाग गई थी। दूसरे कमरे में जाकर दीवार के साथ लगकर रोने लगी थी, लेकिन वो दरवाजे का लॉक शायद चाबी से खोल चुका था। जैसे ही अंदर आया तो नैन तारा के होश उड़ गए थे। कहने लगा, तुम्हारी सारी शर्म मैं आज ही खत्म कर दूंगा। उसे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गया, उसे बेड पर धक्का देकर लिटा दिया। फैजान अभी भी रो रहा था। कहने लगा, खुद इसे फीड करवाओगी या मैं करवाऊं? वो बेचारी बुरी तरह से कांप रही थी। उसने जल्दी से फैजान को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन बहुत शर्म महसूस कर रही थी। बेड पर रखा लिहाफ उसने खुद पर डाल लिया, लेकिन फैजान जब फीड करने लगा वो बुरी तरह से घबरा गई, डर गई थी। वो अजीब सी कैफियत से 2-4 थी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने देखा कि अरबाज खड़ा होकर अलमारी के पास गया है, अलमारी का दूसरा पट जोर से खोलकर उसने एक केन निकाला था जिस पर बियर लिखा हुआ था। वो केन खोलकर वो 2 घूंट में पीकर खाली करके जमीन पर पटक चुका था। नैन तारा की तो जान निकली थी। कहने लगा, जल्दी इसकी भूख मिटाओ, फिर तुम्हारी सुहाग रात भी मैं रंगीन बनाता हूँ। इसके बाद तुम मेरी भूख मिटाओगी। जब तक मैं सैराब ना हो जाऊँ मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बीवी की जगह लेने का? अब शिद्दतें भी बर्दाश्त करो जो वो बर्दाश्त करती थी। बल्कि वो तो मेरी मोहब्बत थी ना, लेकिन तुम उसकी उतरन पहनने वाली और मेरी जिद को पूरा करने का सामान बनोगी। रुबीना से तो मैं मोहब्बत से पेश आता था क्योंकि वो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन तुम सिर्फ मेरे जुनून का निशाना बनोगी, मेरी जिद को तस्कीन पहुंचाओगी। फैजान सो चुका था। बड़ी आहिस्तगी से अरबाज ने नैन तारा को गोद से फैजान को पकड़ा और उसके कॉट पर जाकर लिटा दिया। अब वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी जब एकदम अरबाज ने झटके से लिहाफ पीछे किया था और शराब के नशे में उस पर गिरा था। वो उस पर हावी हो चुका था। उसके बचे कुचे कपड़ों को उतार के कोशिश कर रहा था। वो बार बार, प्लीज़ छोड़ दे मुझे, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, ये कहती रही, लेकिन वो जैसे शराब के नशे में पागल हो चुका था। अपना जुनून उसके वजूद पर उतार रहा था और जब नशा बहुत ज़्यादा गालिब हो गया तो करवट बदल कर सो चुका था। बाकी की रात कमरे में नैन तारा की सिसकियाँ गूंजती रहीं। वो रोती रही। उसे अरबाज पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। वो उसके बारे में बहुत गलत सोच रहा था।
اس نے تو کبھی روبینہ کی جگہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جانے کب اسے نیند آئی تھی۔ صبح فیضان کے رونے کی آواز پر بمشکل اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولی تھی۔ خود بھی ابھی تک سسکیاں ہی لے رہی تھی۔ فیضان کو کمرے سے باہر لے گئی کیونکہ ارباز بے سد سو رہا تھا۔ کچن میں آ کر فیضان کو فیڈر بنا کر دیا اور رونے لگی۔ پھر اسے بیڈ پر لٹا کر سلا دیا۔ الماری سے اپنی بہن کے کپڑے نکالے، روتے ہوئے نہا کر پہنے تھے۔ کمرے سے باہر آ گئی، لاؤنج میں بیٹھ کر رونے لگی۔ نہ ماں تھی اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات کر لیتے۔ ایک روبینہ تھی، وہ بھی دنیا سے جا چکی تھی۔ ماں کا ساتھ بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں ارباز کبھی اس کے ساتھ ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں، یہ ہمیشہ اسے جنون کا نشہ بنائے گا۔ ناشتہ تک اس نے نہیں کیا تھا، وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے کشن رکھ کر اس پر سر رکھ کر سو چکی تھی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو باہر کی ڈور بیل بج رہی تھی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے گئی تو باہر ملازمہ تھی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی بہن کا تو انتقال ہو گیا تھا نا؟ وہ کہنے لگی، ہاں لیکن 2 دن پہلے میرا نکاح میری ہی بہنوئی سے ہو گیا۔ میں اپنے بھانجے کو پالنے کے لیے اس گھر میں آئی ہوں، تم اپنا کام کرو۔ نین تارا نے بس مختصر سے جواب دیا۔ ملازمہ اپنا کام کرنے لگی۔ چپ چاپ ناشتہ کیا، ملازمہ کو بھی ناشتہ دیا۔ ملازمہ بھی صفائی کر کے جا چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو فیضان اٹھ چکا تھا۔ اس نے فیضان کو پکڑا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ دوپہر کے 2 بجے ارباز کی آنکھ کھلی۔ اپنے آپ کو بنا شرٹ کے بیڈ پر سوتے ہوئے دیکھا تو کچھ حیران ہوا۔ گزشتہ رات یاد نہیں آ رہی تھی، لیکن جب کانچ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بیڈ پر دیکھیں تو سب یاد آنے لگا کہ اس نے شراب کے نشے میں نین تارا کے ساتھ کیا تھا۔ اپنے آپ پر افسوس ہوا۔ رات کو بے تحاشا غصے میں تھا اور ایسا دورہ اسے تب پڑ رہا تھا جب سے روبینہ کا انتقال ہوا تھا۔ اسے اتنا شدید غصہ آتا تھا کہ وہ چیزیں اٹھا کر پھینکتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا جنون ختم ہوتا تو بالکل نارمل ہو جاتا۔ ابھی بھی نارمل ہو چکا تھا۔ کمرے سے باہر آیا تو اسے دیکھ کر نین تارا بری طرح سے ڈر گئی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھی تھی۔ ارباز کی آنکھیں ابھی بھی سرخ ہو رہی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے رات کو نشے میں تھی۔ نین بلک بلک کر تو اندر رونے لگی، پیچھے ہٹ کر کہنے لگی، پلیز مجھے کچھ مت کیجیے گا، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، میں نے آپ ہی کی جگہ نہیں لی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے آپ پر بری نظر بھی نہیں رکھی۔ رات کو وہ جو الزام اس پر لگا رہا تھا وہ بھی سہم کر بغیر اس کے پوچھے ہی بولے جا رہی تھی، اور ارباز اس کی جانب بڑھ کر بولا، پلیز ڈرو مت، میری بات تو سنو۔ ارباز کو بے تحاشا شرمندگی ہو رہی تھی۔ ارباز کہنے لگا، آئی ایم سوری، رات کو جو کچھ ہوا میں ہوش میں نہیں تھا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ اکثر اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ نین تارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ بہرحال ارباز اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے بنا ناشتہ کیے اپنی فیکٹری چلا گیا۔ رات کو جب واپس آیا تو فیضان کو گود میں لے لیا، اسے پیار کرنے لگا، پھر اسے اپنے کمرے میں لے گیا، سائڈ ٹیبل کی دراز سے روبینہ کی تصویر نکالی اور فیضان کو دکھانے لگا، یہ تمہاری مما ہے، تم سے بہت پیار کرتی تھی اور مجھ سے بھی بہت پیار کرتی تھی، میں بھی تمہاری مما سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن دیکھو وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ روبینہ کی باتیں یاد آتے ہی ارباز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نین تارا ڈرتے ڈرتے کمرے میں آئی تھی، کہنے لگی، آپ کھانا کھائیں گے کیا؟ میں کھانا گرم کر دوں؟ وہ کہنے لگا، نہیں مجھے بھوک نہیں، تم کھا لو۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی، چپ چاپ کھانا کھایا اور دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں لیٹنا چاہیے، کہاں سونا چاہیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا، ارباز فیضان کو گود میں لیے کمرے میں داخل ہوا، پھر اسے چپ چاپ نین تارا کی گود میں ڈال دیا اور کہنے لگا، تم چاہو تو یہاں سو سکتی ہو، میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ میری ذات سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ نین تارا نے سکون کا سانس لیا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ارباز کو یہ جنون چند روز بعد پھر سے سوار ہو جائے گا۔ گھر پر آیا تو اسے لگا جیسے روبینہ کچن میں کام کر رہی ہے، کیونکہ نین تارا کے اپنے کپڑے تو تھے نہیں، اسی لیے اس نے روبینہ کا ہی سوٹ پہن رکھا تھا، اسی کے کپڑے پہن رکھے تھے، اور جو جوڑا اس نے پہنا تھا ارباز نے بڑی محبت سے یہ روبینہ کو لا کر دیا تھا، اسی لیے وہ کچن میں آ گیا۔ کہنے لگا، روبینہ تم واپس آ گئی؟ وہ اسی ٹرانس میں جا چکا تھا، لیکن جب پلٹ کر نین تارا نے اس کی طرف دیکھا تو اسے غصہ آنے لگا۔ کہنے لگا، پھر سے تم نے میری بیوی کے کپڑے پہنے؟ تم ہوتی کون ہو میری بیوی کے کپڑے پہننے والی؟ نین تارا اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئی، جلدی سے روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھی کچن سے باہر جانے لگی، لیکن اس کا بازو پکڑ چکا تھا، اس کے کپڑے اس نے 1 منٹ میں پھاڑ کر رکھ دیے۔ کہنے لگا، تم نے کس سے پوچھ کر میری بیوی کے کپڑے پہنے؟ سامنے شیلف پر بڑی تیز دھار والی چھری رکھی تھی، وہ سلاد کاٹ کر فارغ ہوئی تھی، پھر روٹیاں بنا رہی تھی۔ وہ چھری اب ارباز کے ہاتھ میں تھی، وہ چھری اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور نین تارا کے گلے کے نیچے حصے پر اس کی نوک رکھ دی۔ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چوٹ لگ جائے گی۔ کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے کپڑے پہننے کی؟ تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کی جگہ دے دوں گا؟ نہیں، میں تمہیں صرف اذیت دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نین تارا کے دل کے مقام پر چھری سے روبینہ لکھا تھا۔ جیسے ہی وہ رونے بلکنے لگی تو اس کا گلا اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا، اگر تم نے مجھے لکھنے نہیں دیا تو میں تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس کے جنون کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا وہ سچ مچ نین تارا کو جان سے مار ڈالے گا۔ چھری کی تیز دھار نوک سے وہ اس کے دل کے مقام پر روبینہ لکھ چکا تھا اور پھر اپنے ہونٹ روبینہ کے نام پر رکھ دیے۔ نین تارا روئے جا رہی تھی، لیکن وہ جنون میں آ چکا تھا۔ اسے گود میں بھرتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ فیضان اپنے جھولے میں باہر لاؤنج میں رو رہا تھا، لیکن ارباز کو پرواہ تک نہیں تھی۔ وہ اس وقت نین تارا پر اپنا جنون نچھاور کر رہا تھا۔
कई जगह जिस्म पर उसके दांतों के निशान थे। वो रो रही थी कि बच्चा रो रहा है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ था, उसे ना अपने बच्चे के रोने की परवाह थी और ना ही किसी और चीज़ की। वो बस अपने जुनून को तस्कीन पहुंचा रहा था। लेकिन जैसे ही उसका जुनून खत्म हुआ तब उसे होश आई। फैज़ान रो रो कर बेहाल हो चुका था। नयनतारा ने उसे खुद से पीछे किया, वो खुद भी पीछे हट गया। वो भागती दौड़ती कमरे से बाहर गई। पूरा वजूद दर्द से चूर था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके वजूद के किस हिस्से पर उसे सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। भागकर वो दूसरे कमरे में जाकर कुंडी लगाना चाहती थी, लेकिन फैज़ान को रोता देखकर उसे इस मासूम पर भी रहम आया, जिस कदर जुनूनी अरबाज हो चुका था। बच्चे को रोता देखकर न जाने उसके साथ क्या ही करता। वो फैज़ान की तरफ बढ़ी, फैज़ान को पकड़कर अपने सीने से लगाया। वो रोए जा रहा था। उसे पकड़कर वो दूसरे कमरे में आ चुकी थी। दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी ताकि अरबाज ना आ सके। गोद में आकर फैज़ान चुप हुआ था और भूखा ही सो गया। उसे वॉशरूम में जाकर शावर खोला था। रोती रही और अपने वजूद से उस शख्स का लम्स मिटाने की कोशिश करती रही। उसे तो खून से वैसे ही बहुत डर लगता था। घर में जब उसने किचन में नया नया खाना बनाना सीखना शुरू किया था तो अक्सर प्याज टमाटर काटते उसकी उंगली पर छुरी से छोटी सी खरोंच लग जाती थी और वो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। जरा सा दर्द भी उससे बर्दाश्त नहीं होता था। और अब जो दर्द उसे मिल रहा था, नहाते हुए उसने एक नज़र अपने दिल के मकाम पर देखा तो मज़ीद फूट फूट कर रोने लगी। जिस बहन को वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उसका नाम उसके सीने के मकाम पर लिखा हुआ था और अभी भी उसमें से खून रिस रहा था। अरबाज का खौफ उस पर मुसल्लत हो चुका था, जो शायद उस पर रहम खाना ही नहीं चाहता था। जैसे ही वो कमरे में आई तो सोया हुआ फैज़ान सिसकियाँ भर रहा था। वो जल्दी से उसके पास आई, उसके साथ लेट गई। कमरा खोलने से उसे डर लग रहा था कि कहीं अरबाज अंदर ना आ जाए। जैसे उसने फैज़ान को अपने सीने से लगाया, वो किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह खोल कर गोया माँ की मोहब्बत और ग़िज़ा तलाश करने लगा। ये बच्चों का फितरी अमल होता है। शायद वो नयनतारा को ही अपनी माँ समझ चुका था। कुछ सोचते हुए नयनतारा ने एक नज़र फैज़ान को देखा और फिर एक गहरी सांस खारिज करके उसने अपनी कमीज़ को ऊपर कर दिया। वो ये करना तो नहीं चाहती थी, मगर फैज़ान की खातिर उसने एक बार फिर उसे फीड करवाना शुरू कर दिया था। ये जानते हुए कि उसके वजूद में अभी किसी बच्चे की ग़िज़ा नहीं रखी गई, वो उसे फीड करने लगा था। इस वक्त पहली बार उसने ये दुआ की कि काश सचमुच उसकी माँ बन जाए और फैज़ान भूख से मिटा सके। ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू भी निकले थे। पूरा वजूद दर्द से चूर था और कमरे में कोई पेन किलर भी मौजूद नहीं थी। फैज़ान भी ऐसे ही सो चुका था और वो भी इसी हालत में आंखें मूंद गई थी। वो कितने घंटे सोती रही उसे कुछ भी मालूम नहीं था। रात के 1:45 बजे से बुलंद आवाज़ रोने की आवाज़ें आई थी। एकदम हड़बड़ा कर उठी थी। घड़ी पर वक्त देखा तो 1:45 बजे थे। फैज़ान भी सो रहा था। अपने कपड़े दुरुस्त करके उठी तो आवाज़ अरबाज की थी, मगर वो क्यों फूट फूट कर रो रहा था। उसका दिल चाहा कि वो दरवाज़ा खोल कर जाए और देखे, मगर इस जुनून शख्स से डर भी लग रहा था। अरबाज की हालत कुछ कुछ उसकी समझ में आ रही थी। शायद ये रुबीना की मौत का सदमा था कि उसे यूं दौरे पड़ रहे थे। धीरे से दरवाज़ा खोल कर वो बाहर निकली थी। सामने लाउंज में ज़मीन पर बैठकर अपने बाल नोच नोच कर अरबाज रो रहा था और यही कह रहा था, क्यों किया मैंने, क्या हो जाता है मुझे गुस्से से। उसने वही छुरी उठा रखी थी और अपनी कलाई पर बिला वजह ही कट लगाया जा रहा था। खुद को असियत दे रहा था। जब रुबीना ने यह देखा तो घबरा गई। कहीं वो अपनी नस काट लेता तो कुछ भी हो सकता था। वो अकेली मासूम लड़की इस वक्त उसे कहाँ हॉस्पिटल लेकर जाती। डरते डरते बाहर निकली और बोली, आप क्या कर रहे हैं अरबाज, आपको चोट लग सकती है, प्लीज़ ऐसा मत करें। वो डर कर दूर खड़े होकर बोली थी कि अगर वो दोबारा उसकी तरफ भाग कर आए तो वो दरवाज़ा लॉक करके अंदर भी जा सके, मगर अरबाज उसे देखकर रोने लगा। चाकू एक तरफ फेंक चुका था। उसके दोनों बाजुओं पर जख्म के निशान थे। कहने लगा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे अपनी कैफियत समझ में नहीं आ रही। पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा करता हूँ। उस रोज़ तुम्हें नशे में था, मगर आज तो नहीं। फिर मैंने क्यों किया? मुझे लगता है जैसे मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। वो रोकर उसे ही सब कुछ कह रहा था। चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। आगे बढ़ी और चाकू को किचन में छुपा कर रखा। कहने लगी, प्लीज़ उठें, कमरे में जाएं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और फैज़ान का क्या होगा? मेरी माँ मुझे आपके हवाले करके गई है। मुझे नहीं पता मेरे नसीब में क्या लिखा है और मेरी मौत शायद आप ही के हाथों में लिखी हो, लेकिन मुझे अपनी बहन की आखिरी निशानी की फिक्र। पता नहीं मुझे कुछ हो गया तो फैज़ान का क्या होगा। अरबाज उठकर खड़ा हुआ तो वो सहम कर पीछे हटी। इससे उस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। अरबाज के दोनों बाजू खून से भरे हुए थे। जब वो चलता हुआ उसके सामने आया और दोनों हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हसीयत तो नहीं देना चाहता था। मैं तो रुबीना के अलावा किसी और के करीब जाने का सोचना भी नहीं चाहता, मगर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। उसकी नज़र रुबीना के लिखे नाम के मकाम पर गई, जहाँ से अभी भी खून रिसने की वजह से कमीज़ का रंग बदल चुका था। वो कहने लगा, देखो मैंने तुम्हें हसीयत दी है ना, इसके बदले मैंने अपने पूरे बाजू छल्ली कर दिया। देखो मैंने खुद को भी ज़ख्मी किया है। वो किसी मासूम बच्चे की तरह बोले जा रहा था और एक ही बात बार बार रिपीट करता कमरे में जाकर बैठ चुका था। वो इस वक्त उसके कमरे में नहीं गई थी, बल्कि सीधा अपने कमरे में आई थी। फैज़ान के लिए फीडर बनाकर उसे पिला रही थी।
और फिर सोच रही थी। अगली सुबह अरबाज बिस्तर पर पड़ा था, बुखार में तप रहा था। वो डरते डरते उसके करीब गई, उसके बाजू पर जमा हुआ खून साफ करके पट्टियां करने लगी। अपने हाथों से नाश्ता करवाया और फिर दवा देकर सुला चुकी थी। उसे अपनी एक दोस्त का ख्याल आया जिसके वालिद साइकोलॉजिस्ट थे। उसे अपनी दोस्त को इसके बारे में मुकम्मल बात बताई तो वो कहने लगी, मैं अपने वालिद से जिक्र करूंगी और फिर जो उन्होंने कहा तुम्हें बताऊंगी। वो फ़ोन बंद कर चुकी थी जब फैज़ान फिर से रोने लगा। वो फीडर पिला रही थी मगर वो तो बार बार उसके सीने की जानिब बढ़ रहा था। पहले से समझदार हो चुका था, जैसे एक माँ के वजूद से ग़िज़ा चाहता हो। कुछ सोचकर रुबीना ने एक नज़र अरबाज को देखा जो आंधे मुँह लेट कर सो रहा था। उसने वही फैज़ान की आदत पूरी करने के लिए अपने सीने से लगा लिया। 15 मिनट गुजरे थे जब नैनतारा को लगा जैसे कुदरती तौर पर दूध आने लगा। वो कुछ हैरान हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो हड़बड़ाकर अपने आप को देखने लगी। सचमुच उसके वजूद से बच्चे की ग़िज़ा आने लगी थी। फैज़ान अभी सैर नहीं हुआ था, वो गला फाड़ कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ पर अरबाज भी उठ चुका था। वो फ़ौरन से खुद को छुपाने लगी मगर फैज़ान रोए जा रहा था। अरबाज कहने लगा, क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है? क्या तुम इसे फिर से फीड करवा रही थी? देखो मैं मानता हूँ मैंने गलत किया था, तुम एक बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, फिर तुम इसे अपने सीने से क्यों लगाया हुआ है? मगर इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। इसकी चाहते हुए अरबाज से कहने की, अरबाज पता नहीं सब कुछ कैसे हुआ मगर सचमुच मुझे फीड आने लगा है। अरबाज की आंखें पूरी खुली थी। फैज़ान एक बार फिर उसके सीने से लगा फीड कर रहा था और वो उसे दूर चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। अरबाज तो हैरत से मुस्कुराया, कहने लगा, ये मुमकिन कैसे है? कहीं तुमने कोई ऐसी दवाई तो नहीं ली जिससे तुम्हें फीड आए? वो कहने लगी कि नहीं, मैंने क्या दवा लेनी है, मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाती। कहीं ये दूध बच्चे के लिए ख़राब हो तो कहीं से कुछ हो गया था। ज़बरदस्ती उसे खुद से अलग कर चुकी थी। अरबाज इसी वक्त फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर गया। जिस कदर नैनतारा बदहवास थी, डॉक्टर भी परेशान हो गई। हिचकिचाते हुए बताने लगी कि मैं अभी तक माँ नहीं बनी, ये मेरी बहन का बच्चा है और फिर भी मुझे फीड आने लग गया। ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान हुई। कहने लगी, नहीं पूरी बात बताएं, ऐसे तो किसी को फीड नहीं आता, कुछ तो ज़रूर हुआ है। वो सर खजाते हुए कहने लगी, मैं बस फैज़ान की आदत पूरी करने के लिए इसे फीड करवा देती थी और ये मुझे माँ समझकर फीड करता और सो जाता, और फिर ये अभी 3 महीने का हुआ है और मुझे ये फीड आने लगी। ये सुनकर डॉक्टर ने पहले तो उसके टेस्ट किए और फिर जब टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, नैनतारा बेटा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक नेचुरल अमल है। जब बच्चे ने आपके वजूद से ग़िज़ा लेने के लिए रुजू किया तो आपके दिमाग ने खुद ब खुद सिग्नल भेजना शुरू कर दिए, आपके हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए और आप बिल्कुल वैसे ही उसे फीड करवा सकती हैं जैसे कि एक माँ अपने मासूम बच्चे को फीड करवाती है। अरबाज इस कदर हैरान था कि कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी जानिब नैनतारा की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अरबाज भी खुश हो चुका था। अरबाज ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ना चाही तो वो हिचकिचाते हुए कहने लगी, अरबाज आप प्लीज़ इस हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ दें। इस तरफ तो साइकोलॉजिस्ट का हॉस्पिटल था। अरबाज कहने लगा, क्यों, वहाँ क्या करने जाना है? वो कहने लगी, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, आपको फैज़ान की कसम कुछ भी सवाल मत कीजिए। फैज़ान की कसम के आगे वो चुप हो चुका था। ये उसके दोस्त के वालिद का ही हॉस्पिटल था जहाँ पर वो अरबाज को लेकर आई थी। अरबाज को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। कमरे में जब उसकी अपॉइंटमेंट आई तो साथ नैनतारा भी गई। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाया मगर डॉक्टर के कहने पर वो उसे सब कुछ बताने लगा कि उसे अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत थी। डॉक्टर साथ साथ उसे कुछ दवा भी खिला रहे थे जिससे वो बिल्कुल पुरसुकून होकर सब कुछ बता रहा था और फिर रोते हुए बताता बताता खामोश हो गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट भी करवाए और इसके बाद अरबाज और नैनतारा को बताया कि अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। दूसरा, इनमें गुस्सा हद से ज़्यादा था। जब इनकी बीवी की हादसाती मौत हुई तो एकदम से इनका दिमाग जैसे सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए इनको यूं दौरे पड़ने लगे और ये अपनी दूसरी बीवी को मौत का कसूरवार समझकर उस पर जुल्म और सितम करते हैं। मगर जैसे ही नॉर्मल होते हैं तो इन्हें शर्मिंदगी होती है, दुख होता है। 5-6 महीने का कोर्स है। अगर ये बाकायदगी से दवा लेंगे और ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो इनकी ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। अरबाज खामोशी से ये सब सुनकर वहाँ से बाहर निकल आया। इसके बाद दोबारा अरबाज को ऐसा कोई पैनिक अटैक नहीं आया था। वो दवा बाकायदगी से लेता और हर रात नैनतारा उसे खुद दवा देती थी। जानती थी अगर एक दिन भी नागा हो गया तो सख्ती उसी की आएगी। हर रात की तरह आज भी वो दूध के गिलास के साथ दवा लेकर गई तो कमरे में फैज़ान अरबाज की गोद में खेल रहा था। वो जैसे ही उसे वहाँ पर छोड़कर बाहर जाने लगी तो फ़ौरन से वो बाजू से पकड़ चुका था। हिचकिचाकर नैनतारा ने पलट कर देखा तो अरबाज कहने लगा, कहाँ जा रही हो? मेरे पास भी कभी बैठ जाया करो, जब देखो तो तुम किसी न किसी काम में मसरूफ़ ही होती हो। वो कुछ झिझकती हुई उससे कुछ फासले पर बैठ चुकी थी। फैज़ान इस वक्त खेल रहा था। उसने नया नया बोलना शुरू किया था, हर वक्त मामा मामा करता रहता। अरबाज थोड़ा नाराज़ होता, कहने लगा, तुमने इसे मामा मामा कहना सिखाया, बाबा बोलना नहीं सिखाया, क्या मैं इसका कुछ नहीं लगता? वो कहने लगी, नहीं नहीं, ये तो बस बच्चे की ज़बान ही ऐसी होती है, वो वैसे ही आवाज़ें निकालता है तो लगता है जैसे मामा को बुला रहा है। सच में मैंने इसको कुछ नहीं सिखाया। वो अभी भी उससे सहम कर फ़ौरन सफाई पेश कर रही थी और अरबाज अंदर ही अंदर हिचकिचा रहा था।
बस किसी तरह वो अपना रिश्ता उसके साथ बेहतर करना चाहता था, दोस्ताना रवैया रखना चाहता था। कितनी ही देर वो बातें करते रहे। जब फैज़ान को भूख महसूस हुई तो वो नैनतारा की गोद की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ उसने अरबाज का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ वो नैनतारा की तरफ बढ़ रहा था। नैनतारा उसे उठाकर दूसरे कमरे में जाने लगी ताकि फीड करवा सके, मगर वो तो वहीं अरबाज का हाथ पकड़ चुका था। वो यही चाहता था कि बस एक तरफ अरबाज का हाथ भी पकड़ रखे और उसकी मामा उसे फीड भी करवा दें। शर्म से सुर्ख लाल होती नैनतारा कहने लगी कि बेटा चलो दूसरे रूम में जाकर फीड करवाऊंगी मैं आपको। मगर वो तो मज़ीद रोने लगा था। अरबाज कहने लगा क्या हो गया, बच्चे को क्यों डरा रही हो, यहीं बैठा कर फीड करवा दो इसे, नहीं देख रहा मैं तुम्हारी तरफ। उसने अपना फ़ोन निकाल लिया और फैज़ान का हाथ भी पकड़े हुए था। जब कुछ हिचकिचाते हुए नैनतारा ने उसे वहीं पर बैठ कर फीड करवाना शुरू कर दिया था। अरबाज देखना तो नहीं चाहता था, मगर फिर भी शायद ये फितरी ख्वाहिश थी और वो उसकी बीवी थी। बेसाख्ता उसकी नज़र नैनतारा के वजूद की तरफ उठने लगी और वो उसे देखने लगा। उसके अंदर के जज्बात एक बार फिर उबाल मारने लगे। इसे फीड करवा कर वो उठने लगी तो उसे पकड़कर अपने करीब कर गया। फैज़ान सोच चुका था, कहने लगा क्या तुम मुझे एक बार माफ़ी मांगने का मौका नहीं दोगी। नैनतारा कहने लगी मैं आपकी कैफियत समझ सकती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था जैसा आप समझते हैं, मैंने आपको माफ़ भी कर दिया। मगर वो उसे अपने बेहद करीब कर चुका था। कहने लगा नहीं, मैं तो माफ़ी अपने तरीके से मांगूंगा। जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें दर्द दिया है ना, ज़ख्म दिए हैं, वहाँ वहाँ पर अब मैं तुम्हें सुकून दूंगा। नैनतारा थोड़ी सी हिचकिचाई, मगर वो उसे बाहों में भर कर अपने ही करीब लटा चुका था। कहने लगी अरबाज प्लीज़, मुझे डर लग रहा है और फैज़ान जाग जाएगा। वो कहने लगा कि बेड इतना बड़ा है, वो एक तरफ सो रहा है, नहीं जागता, वैसे भी हमने शोर थोड़ी करना है जो वो जागेगा। ये कहकर वो उस पर मुकम्मल तौर पर हावी हुआ था और फिर बड़े ही प्यार से अपने लम्स से उसे आशना करवाने लगा। इससे पहले उसने उस पर जुनूनी वार किया था। पहली बार वो उस कदर मोहब्बत भरे लम्स से नैनतारा को रूशनास करवा रहा था और नैनतारा भी जैसे पिघलती चली जा रही थी। अभी वो उसके करीब आया ही था, उसकी गर्दन पर अपने लब रख कर वहाँ पर सुर्ख निशान पर लब रखे थे, जब एकदम से कहने लगा रुबीना तुम जानती हो मुझे हमेशा तुम्हारी गर्दन पर अपने लब रखना बेहद पसंद आया। मैं तो तुम्हारी ऐसी हसीन गर्दन का दीवाना ही हो चुका था। नैनतारा के दिल में धीरे धीरे अरबाज के लिए एक नरम गोशा बनने लगा था, मगर आज इन कुर्बत के लम्हात में जब वो खुद अपनी रजामंदी से अपना आप अरबाज को सौंपने लगे, मगर रुबीना का नाम सुनकर नैनतारा का दिल जैसे किरची किरची हुआ था। वो अपनी आंखें खोलकर अरबाज को देखने लगी। हिचकिचाते हुए अरबाज ने फ़ौरन कहा कि नहीं, मैं बस तुम्हारा ही नाम लेना चाहता था। मगर तब तक नैनतारा उसे खुद से अलग करके दूसरे कमरे में जा चुकी थी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बेआवाज़ रोने लगी। घर में बिल्कुल खामोशी थी और उसकी सिसकियाँ इस वक्त कमरे से बाहर तक आ रही थीं। अरबाज भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ था। आखिर को वो भी एक लड़की थी, भले ही उसकी बहन थी, मगर यूं गुर्बत के लम्हात में रुबीना का नाम खुद ब खुद ही उसके लबों पर आया था। वो कमरे में वापस चला आया क्योंकि अब नैनतारा को मज़ीद कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। कमरे में दीवारों पर जगह जगह रुबीना और उसकी तस्वीर लगी हुई थी, जो आज से 6 महीने पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी और यकीनन उसकी जगह हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। मगर वो एक गए हुए शख्स के लिए आज मौजूद उस लड़की को मज़ीद असियत नहीं देना चाहता था। जब तक रुबीना की तस्वीरें उसके सामने रहती वो यूं ही जुनूनी रहता। एक गहरी सांस खारिज करके उसने एक नज़र इन तस्वीर को देखा और फिर इन सब तस्वीरों को उठाकर उसने स्टोर में रख दिया। उसे वो वक्त याद आने लगा जब बड़े प्यार से वो और रुबीना इस कमरे में उन दोनों की तस्वीर से डेकोरेशन कर रहे थे, मगर अब इन तस्वीरों को उठाकर स्टोर रूम में रखा जा चुका था। आखिरी बार जब उसने इन तस्वीरों को एक बैग में रखने के बाद स्टोर रूम को लॉक लगाया तो आंखों में आंसू थे। वो वापस अपने कमरे में आ चुका। अगले रोज़ जब फैज़ान को लेने के लिए नैनतारा कमरे में आई तो वहाँ पर एक भी तस्वीर मौजूद नहीं थी। वो कहने लगी रुबीना आपी की तस्वीरें कहाँ गई। अरबाज कहने लगा मैंने हटा दी, वो मुझे छोड़कर चली गई अल्लाह के पास। जब तक उसकी तस्वीरें मेरे सामने रहती मैं कभी ठीक नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने उसकी तमाम यादों को एक बॉक्स में बंद करके रख दिया ताकि मैं इन सब से निकल सकूं। वो खामोश हो चुकी थी। अगले ही रोज़ नैनतारा ने कमरे में फैज़ान की और अरबाज की बहुत ज़्यादा तस्वीरें लाकर कमरे को सजा दिया था और एक तस्वीर उसने अरबाज, रुबीना, अपनी और अपनी माँ की भी फ्रेम करवा कर लगवाई थी, जिसमें वो लोग सभी खड़े मुस्कुरा रहे थे। अरबाज उस शाम जब घर लौटा तो इन तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा उठा, फिर इस तस्वीर के पास आकर गया जिसमें वो चारों खड़े मुस्कुरा रहे थे। नैनतारा भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। अरबाज ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुबीना को भूलना उसके लिए नामुमकिन था, मगर वो नैनतारा के साथ
ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच के ताल्लुकात कदरे बेहतर हो चुके थे। अरबाज जब भी घर आता तो फैज़ान बाबा बाबा करता उसकी जानिब दौड़ कर आता था। नैन तारा उसके लिए खाना बनाकर खट्टी मीठी शरारतें कर रही होती थी। फैज़ान और नैन तारा की शरारतें और नोक-झोंक देखकर अरबाज हंसता था। अभी भी फैज़ान उसी कमरे में मौजूद अपने बेबी बेड पर गहरी नींद सो रहा था जब उसके पास तकियों को रखने के बाद नैन तारा बेड पर आकर बैठी थी, लेकिन अरबाज उसे फ़ौरन अपनी बाहों में भर चुका था। वो इस वक्त नाइट सूट में थी जबकि अरबाज शर्टलेस लेटा हुआ था। वो उसके सीने पर उंगलियां फेर रही थी और मुस्कुरा कर कहने लगी कि अरबाज, कल हमारा फैज़ान पूरे 3 साल का हो जाएगा। कितना जल्दी वक्त गुजर गया। अरबाज मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ, पलक झपकते ही क्या से क्या हो गया। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ। लेकिन वो क्या अरबाज? वो कहने लगा कि फैज़ान कब तक अकेला घर में खेलता रहेगा। उसे एक अदद छोटा बहन भाई तो चाहिए जो उसके साथ पूरे घर में उधम मचा सके और तुम्हारी नाक में मज़ीद तंग करके दम कर सके। ये सुनकर नैन तारा का चेहरा सुर्ख हुआ था। कहने लगी, नहीं, खुद तो आप चले जाते हैं, मुझे तो बस मेरा एक फैज़ान ही काफ़ी है, और बच्चे और आ गए तो मैं कैसे संभालूंगी। ना बाबा ना। वो फ़ौरन उसके सीने से सर उठाकर बोली थी। अरबाज उसे फिर से अपने सीने से लगा कर कहने लगा, पगली, बस मुझे अब एक बेटी चाहिए तो बस चाहिए, और अगले साल तक वो मुझे मेरी गोद में चाहिए। तो इसके लिए हमें आज ही से तैयारी शुरू करनी होगी। तुम जानती तो हो कि कितनी मेहनत लगती है। ये सुनकर नैन तारा उसे घूर कर देखने लगी। कहने लगी, अच्छा, मुझे पहले ही आपकी बातों का पता था कि आज आप ज़्यादा ही रोमांस कर रहे हैं। वो उसे बाहों में भर कर अपने करीब कर चुका था। कमरे में उनकी दबी दबी सरगोशियाँ और फिर हंसने की आवाज़ें और फिर सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगी थीं। कमरा अंधेरे में डूब चुका था और एक और रात उनकी एक दूसरे के नाम हो चुकी थी।